Jump is mainly on account of, as Honorable Chief Minister referred in his speech, on account of the inclusion of J&K in SASCI, and under this program till now, because J&K, all the departments have taken maximum efforts to accelerate their respective projects. Till now, we have received 3,200 crores. So it's a massive jump within 1 year. If you look at many other states of our size, they are still at around 700, 800 crores. But Jammu Kashmir has already reached 3,200 crores in terms of receipt. That's a remarkable achievement. In terms of administrative sectors of this particular budget, the administrative sector, which covers GAD and other departments, the outlay is reduced from 1490 crores to 964 crores. The reduction is mainly on account of J&K Police and Home Department, because that burden is now no longer on our shoulders. In infrastructure sector, the outlay has increased from 10,300 crores to 11,300 crores, major jump of 1,000 crores. Even within that, power department is slightly on lower side, because we have paid all the equity that was due on part of J&K in current year itself. So no equity is to be paid in the next financial year. Then social sector, the outlay is 4,665 crores. Economic sector, the outlay has been increased from 6,200 crores to 6,518 crores, especially for agriculture, horticulture, etc. And then finally for the economic sector, the finance sector, the outlay has increased from 7,700 crores to 9,600 crores, mainly on account of higher repayments that we have. The special welfare initiatives, the major ones which have already been announced by Honorable Chief Minister in his budget, relate to the financial support to the AAY families in terms of 6 free LPG cylinders per year. Second is the development of 2 emergency and trauma hospitals at Puri and Punch. Extension of free public transport services on smart city buses and JKRTC buses from women, and now it will be covering all the differently abled persons. The budget also includes sponsorship for around 6,000 orphans who are under non-institutional care, so providing them financial support of ₹4,000 per month. And the major announcement of ensuring free education for all the students from AAY families, so that economic hardship does not remain an obstacle before them and they are able to move in life rapidly. So providing free education to all AAY students in class 9 to 12 and also in colleges. So these are some of the major initiatives. In detail, there are almost 32 major initiatives which Honorable Chief Minister announced in his budget speech. These are covered in the documents that we have provided to you. I will not go into the details of all the 32 major initiatives which are there, because those are already there, and also because this day actually belongs to Honorable Chief Minister as Finance Minister, and so I will like to be brief. He has, over the past several months, toured nook and corner of J&K, listened to people, and tried to accelerate all the developmental works across J&K. He has pursued the union government relentlessly and ensured maximum funds come to J&K for development. Specifically for this budget, he has ensured that wide-ranging consultations are undertaken with all the stakeholders and ensuring that the budget responds to the concerns expressed in those consultations. And he had also ensured that there is a fine balance between the fiscal prudence and the welfare measures which should be ensured to respond to these challenges. With that background, I will now request Honorable Chief Minister to speak about budget priorities and give his initial kind remarks. And at the end, again, I welcome all the dignitaries and all my friends from media. Thank you. सबसे पहले तो मैं आप तमाम मीडिया के दोस्तों का शुक्रगुजार हूं कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने आए। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि जितना बोलना था
बजट के मुतालिक वो हाउस के अंदर मैं बोल चुका हूँ। मैं बजट के मुतालिक बोलने से पहले बिलखसूस अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए तमाम अफसरों को इस बजट की कामयाबी पे मुबारकबाद और शुक्रिया पेश करना चाहूँगा। इन्होंने वाकई इसकी तैयारी में बहुत मेहनत की है और उसके साथ साथ महकमों को जिस तरह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मेरे साथियों ने संभाला, इन सब की कोशिशों का नतीजा है कि हम इस मौके पे पहुंचे हैं। जैसे संतोष वैद्य साहब ने कहा, तमाम मुश्किलात के बावजूद और जम्मू कश्मीर के कमजोर माली हालत के बावजूद हुकूमत की मुकम्मल कोशिश रही है कि सबसे जरूरतमंद लोगों को हुकूमत की तरफ से एक राहत मिले। कोई बजट अपने आप में एक आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ये एक सीरीज रहता है हुकूमत की तरफ से। ये बजट भी इकलौता एक अपने आप में डॉक्यूमेंट नहीं है, इसको आपको पिछले साल के बजट के साथ लेके चलना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एक सीरीज में जो है मेजर्स देती हैं और इम्प्लीमेंट करती हैं। तो जो वेलफेयर, जो पीपल फ्रेंडली अप्रोच हमने पिछले साल अपने बजट के दौरान उसकी बुनियाद डाली, उस बुनियाद पे अब आहिस्ता आहिस्ता हमने इमारत खड़ी करनी शुरू की। लेकिन एक जिम्मेदार हुकूमत होने के नाते ऐसा भी नहीं है कि हम अपने इलेक्शन में किए हुए वादों को एक ही दिन में पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर के खजाने पे बहुत ज्यादा बोझ डालें या बहुत ज्यादा कर्जा उठाएं या और पैसा कमाने के लिए हम नए नए तरीके अपनाएं। कोशिश की कि जितना है उसी का हम सही इस्तेमाल करें, थोड़ा सा और कमाई अपनी बढ़ाएं, थोड़े से जो हमारे जहां जहां नुकसान है खासकर बिजली में, हमारी मुकम्मल कोशिश है कि जो हमारे लॉसेस हैं उनको कम किया जाए, जो हमारे रेवेन्यू रियलाइजेशन है उसको बढ़ा दिया जाए, ताकि बचा हुआ पैसा जो है वो लोगों के राहत के लिए इस्तेमाल हो। इस साल स्टेट असिस्टेंस, सेंट्रल ये फैक्ट्री का जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए स्पेशल असिस्टेंस फॉर स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये जो जम्मू कश्मीर पे इस साल से लागू हुआ, जिसके लिए मैं मरकज की हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ, उससे भी हमें कुछ नए मौके मिले लोगों की खिदमत करने के। लेकिन जैसे मैंने बजट के दौरान कहा और आपसे फिर कहा, ये एक सिलसिला है। सिलसिले में पहली जो शुरुआत पिछले साल हुई उसको हमने आगे बढ़ाया और जैसे जैसे हुकूमत की कार्रवाई चलती रहेगी हम इस सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन शुरू में इतना ही कहते हुए अब मैं डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करें और हमारी कोशिश रहेगी कि आपके सवालों को हम जवाब दे जाएं। Thank you, sir. With your permission, we now open the floor for questions. For asking a question, please raise your hand and please identify yourself, your name of the organization before asking a question. Please keep your question to brief so that we can accommodate a larger number. Yes, so we can start. Yeah. मोहन साहब, मेरा नाम अजय है, मैं एबीपी न्यूज से हूँ। आपने असेंबली में भी अपनी स्पीचेस में रिपीटेडली ये कहा है कि जो पिछला साल रहा है आपके लिए चैलेंजिंग रहा है। मैं सर आपसे सिर्फ एक जवाब चाहता हूँ कि एज चीफ मिनिस्टर आपके लिए साल 2025 में सबसे बड़ा चैलेंज है? 2025 में दो बहुत बड़े मुश्किलात का हमने सामना किया। एक बैसरन में जो हमला हुआ, हमले में कई कीमती जानें जो हैं वो चली गई और उस हमले ने दो मुल्कों के दरमियान एक जंग की सूरत पैदा हुई।
उस तमाम अनसर्टिनिटी के माहौल में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है हमारी इकोनॉमी का जहां पे हमें धक्का ना पहुंचा हो। आप हॉस्पिटैलिटी देखिए, आप इंडस्ट्री देखिए, आप सर्विस सेक्टर देखिए, जिस भी सेक्टर को आप देखें तो जो हम उम्मीद लगाए बैठे थे पिछले साल कमाई की, वो सारा रह गया। तो वो एक मुश्किल दौर था हमारे लिए। और फिर जो साल के बीच में सितंबर अक्टूबर के आसपास जो सैलाब का सिलसिला बना पूरे जम्मू कश्मीर में, लेकिन बिलखसूस जो जम्मू के कुछ इलाकों में बारिशों की वजह से जो नुकसान हुआ, वो भी हमारे लिए एक मुश्किल दौर रहा। उसमें जो मरकज ने हाल ही में 1430 करोड़ का एक पैकेज शासकी के तहत परमानेंट रिकंस्ट्रक्शन के लिए अब जम्मू कश्मीर के लिए ऐलान किया है। अब उन पैसों का सही इस्तेमाल करके हम यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन का सिलसिला जो है उसको ठीक ठाक आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये दो बड़े चैलेंजेस थे हमारे लिए। उम्मीद करते हैं क्योंकि पिछले साल जब हम इसी तरह इसी हॉल में पोस्ट बजट आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो माहौल अलग ही था। उस वक्त ना पहलगाम का किसी ने सोचा था तो ना फ्लड्स का। अब इस साल हमारी उम्मीद है कि ये साल अगर हमें ठीक ठाक मिल जाए तो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को हम एक स्टेबल और एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे जो है उसको ले जाने में हम कामयाब हो जाएंगे। सर मैं रजत बोल रहा हूँ जी न्यूज से। दो सवाल है सर। पहला ये कि कई सारे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में। आपको लगता है कि जो केंद्र सरकार ने जो इंडस वाटर ट्रीटी अभियान में रखी है उससे कहीं ना कहीं सरकार को फायदा हुआ है और कई सारे जो प्रोजेक्ट जिसमें डिले होता था या जो फंड्स है उसकी कमी हो जाती थी या एक्सीड हो जाता था एक्सपेंडिचर, उसका जो है वो फायदा कहीं ना कहीं सरकार को मिला है उसे एमकेएस में रखने में। दूसरा सवाल सर है, Sir, can I finish the first one? Otherwise, I will not be able to. I might forget the question. There are Indus Water Treaty का जम्मू कश्मीर को फायदा मिलना चाहिए, मतलब उसके अभियान्स का, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। जो जिन पावर प्रोजेक्ट्स के हवाले से आपने बात की, चाहे रतले हो, कीरू हो, वार हो, पकड़लुल हो, वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। उनके स्कोप को, उनके डिजाइन को, उनका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है उनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो इंडस वाटर ट्रीटी के अभियान्स में रखने से इन प्रोजेक्ट्स में जनरेशन कैपेसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। आगे जाके हम जो नए प्रोजेक्ट्स अगर बनाने जाएंगे उनमें अगर इंडस वाटर ट्रीटी का जो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन थे अगर वो ना रहे तो जरूर आगे जाके हमें फायदा मिल सकता है। हाल ही में मतलब हम अब हमारी ये सोच है और ये कोशिश है, क्योंकि पावर प्रोजेक्ट्स को बनते बनते बहुत टाइम लगता है। कम अरसे में हम दो चीजों पे फायदा फौरी तौर हासिल कर सकते हैं। एक, अगर वुलर के पास सोपोर में तुलबुल नेविगेशन बैराज बने जिससे कि जहलम में हम पानी जो है और ज्यादा रख पाए, उससे दो फायदे हैं हमें। एक तो जहलम को हम नेविगेशन के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे, वुलर को हम बचा पाएंगे, और डाउनस्ट्रीम जितने भी हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, लोअर जहलम, उड़ी 1, उड़ी 2, इनमें जनरेशन कैपेसिटी जो हमारी बढ़ जाएगी। ये एक। और दूसरा, अगर अखनूर के पास पानी हम चिनाब से निकाल के जम्मू शहर को सप्लाई करना शुरू करें तो जम्मू में जो पानी की किल्लत रहती है उसको हम दूर कर पाएंगे। तो इंडस वाटर ट्रीटी का अभी तक पावर सेक्टर पे कोई खास असर पड़ा नहीं है। अगर फायदा हमें किसी चीज का हुआ है तो शासकी का हुआ है। जैसे फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने अपने प्रेजेंटेशन में आपको कहा, जो हम अपना शेयर इक्विटी का इन प्रोजेक्ट्स के लिए लेते थे जिनका मैंने अभी जिक्र किया, वो पैसा इकट्ठा करने के लिए हमें थोड़ी सी मुश्किल का हमें सामना करना पड़ता था। अब शासकी के तहत ये इक्विटी कंट्रीब्यूशन जो है जम्मू कश्मीर की तरफ से हम न सिर्फ वक्त पे बल्कि इस बार वक्त से आगे, इसलिए अगले साल के लिए हमने कोई प्रोविजन रखा ही नहीं, क्योंकि अगले साल का ये इक्विटी कंट्रीब्यूशन हमने इस साल निपटा लिया है। तो अगर फिलहाल हमें पावर प्रोजेक्ट्स में किसी चीज का फायदा हुआ वो शासकी का हुआ है। आगे जाके इंडस वाटर ट्रीटी का हो, ये हमारी उम्मीद है। सर छोटा सा दूसरा सवाल था कि कल आपने भले ही मजाकिया अंदाज में कांग्रेस को ये कहा कि कई बार जो है वो जरूर वो आनाकानी करते हैं केंद्र सरकार के जब आप थैंक यू करते हैं। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं अड़चन बनती है आपकी सरकार के लिए कि आप असिस्टेंस मांगे या आगे कोई बन सकती है? मुझे बचपन में कुछ सिखाया ना गया हो लेकिन तमीज जरूर सिखाई गई है।
और मैं बदतमीजी नहीं करूंगा। अगर जम्मू कश्मीर के लिए किसी ने अच्छा किया, मैं शुक्रिया करूंगा। मैं बार बार कई चीजों के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का शुक्रिया करता हूँ। जब मैं 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के हवाले से बात करता हूँ, उनका शुक्रिया करता हूँ। जब मैं 4 लेनिंग और नेशनल हाईवे के हवाले से बात करता हूँ, उनका शुक्रिया करता हूँ। कई चीजों के लिए मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का शुक्रिया करता हूँ। अब अगर जम्मू कश्मीर में इन दिनों शास्त्री का प्रोजेक्ट शास्त्री का हमें मिला, तो अगर मैं वजीर आजम का शुक्रिया ना करूं तो गलत होगा। जो एडिशनल फंडिंग हमें मिलती है फाइनेंस की तरफ से, जिसमें होम डिपार्टमेंट का हमें सहयोग मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अगर मैं होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया ना करूं तो ये गलत होगा। मैं ये शुक्रिया किसी को खुश करने के लिए नहीं करता हूं। मैं समझता हूँ ये अच्छी तमीज है। किसी ने जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा किया हो, मैं उनका शुक्रिया करूँ। लेकिन ये जो मैंने कहा, ये मजाक, क्योंकि करा साहब ने भी थोड़ी सी हमें दुरुस्त देने की कोशिश की, तो मैंने भी थोड़ा बहुत उसका जवाब दिया। हाउस में ये चलता रहता है, लेकिन इसमें आप इसको और संजीदगी से मत लीजिएगा। रिपब्लिक सर, गुरसिमरन फ्रॉम रिपब्लिक से 2 छोटे से सवाल रहेंगे। सर, पहला सवाल यह है कि जो कश्मीर में आज आपने बजट पेश किया, जो टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल इनकम जो कश्मीर की रहती है, बजटरी नीड्स के अकॉर्डिंग रफली 25/4 जो है वो हम अपनी यहाँ से देते हैं, लेकिन मोस्टली डिपेंडेंस हमारी सेंटर पे ही रहती है, जो सेंटर से फंड आए। तो कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ हम देख रहे हैं, जो प्लान की है गवर्नमेंट ने, सो दैट कि जो यहाँ से पैसा जनरेट हो वो स्टेट के लिए यूज हो पाए। और सेकंड क्वेश्चन अभी पूछ रहे थे बात वो तो बजट के दौरान भी और अभी फाइनेंस सेक्रेटरी ने भी आपसे कहा कि हमारी कोशिश है कि हमारे रेवेन्यूज जो है वो बढ़ जाएं, हमारे लॉसेस कम हो। हमारी सबसे बड़ी जो है, अगर आप जो हमारी फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है वो आप छोड़ दीजिए, सैलरीज, पेंशन वगैरह वो तो है ही, लेकिन जो हमारे बिजली में लॉसेस हैं उनको हम कम करें। अब आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम किया जा रहा है। 9% हमने अपने AT&C लॉसेस कम किए हैं, 16% हमने अपनी रेवेन्यू रियलाइजेशन जो है वो बढ़ा दी है। ये सिलसिला हम जारी रखेंगे ताकि बिजली में जो हमारा नुकसान है उसको हम बिल्कुल क्लियर करें। इसके साथ साथ अपने रेवेन्यूज को बढ़ाने के लिए इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में 25-26 हमने 7 अपने लाइमस्टोन के जो माइनिंग के लिए दिए हैं ब्लॉक्स ई ऑक्शन के लिए, उसमें अच्छा खासा हमें रेवेन्यू मिल जाएगा। इंडस्ट्री और फले फूले उससे हमें कमाई मिलेगी। हमारे जो छोटे इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, MSME, उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये रहती थी कि परमिशंस यूनिट्स अपने चालू करने के लिए उसमें बहुत वो दर बदर के ठोकरें खाते थे। तो इस बार हमने सेल्फ सर्टिफिकेशन के बुनियाद पर उनसे कहा है कि 3 साल तक आपसे कोई ये नहीं मांगा जाएगा, आप सेल्फ सर्टिफिकेशन करिए और अपने यूनिट्स चालू करिए। हमें उम्मीद है कि उनके यूनिट्स चलें तो उससे भी जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को फायदा मिलेगा। लेकिन ये एक सही बात है कि जम्मू कश्मीर की डिपेंडेंस जो है सेंटर पे है। आगे जाके हम उसको कितना कम कर पाए ये हमारे लिए एक चैलेंज है, लेकिन हमारी कोशिश जरूर रहेगी। वैसे दूसरा सवाल, आज 6 तारीख को आपने बजट पेश किया, लेकिन एक दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा, रिपीट किया कि जो कश्मीर है हमारी शेर हक है, वो जल्द ही कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। किस तरह से हम पाकिस्तान के हिस्से होंगे? जो उनके पास है वो उनसे संभलता नहीं, हमें लेके क्या करेंगे वो? अब ये और वैसे भी मैं जानता हूं आपके चैनल को बजट से कोई लेना देना नहीं। जो बजट पे आपने मुझसे सवाल पूछा आपका चैनल दिखाएगा ही नहीं। आप किसी तरह मुझे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मामले में जो है घुसा देना चाहते हो ताकि आपको कुछ मिले। ये बजट के मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कभी बाहर जाके बात करेंगे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के मसले में आप मुझे उलझा लो, मैं भी उलझ जाऊंगा, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं। I request everyone to please limit your questions to budget only. This side. This side. This side. Hello, I am Anil Bhatt from PTI. Jammu Kashmir has been actually the hydropower economy. Will your government focus on the hydropower economy? That's almost 1 lakh crore economy. देखना, Jammu and Kashmir is not a hydropower economy. When has Jammu and Kashmir been a hydropower economy? We have potential in hydropower, but our economy gets almost nothing in terms of actual earnings
from hydropower. Maybe going ahead, when all our projects come on stream, when all the power is ours, it's possible that hydropower will change the focus of the J&K's economy. But as you know, hydropower is incredibly capital intensive and all that investment is upfront. Therefore, trying to get hydropower generation is not an easy thing to do. Jammu and Kashmir's economy is largely agrarian. Our economy is hugely dependent on agriculture, horticulture, allied services, which is why in this budget there is a particular focus on agriculture, on horticulture, on improving productivity, on dairy. Whether you noticed or not, there is a huge move towards growing our capacity in the dairy sector, both in terms of generating or producing more milk, but in terms of processing milk. I mean, when you sit and see the comparison between Jammu and Kashmir, where we process 40% of our milk, with a state like Gujarat, which processes close to 90% of the milk, you see the difference that exists. So, while hydroelectricity is an important part of the infrastructure of Jammu and Kashmir, the economy is for us is to be focused on horticulture, agriculture, industry, tourism, handicrafts, things like that. Yeah, thank you. Good afternoon, sir. Myself Samiksha Verma from Universal News Timeline. सर, आज आपने बजट में डेली वेजेस को लेकर बात की. पिछले साल की बजट में डेली वेजेस की बात की गई थी, कमेटी बनाई गई थी उसको लेकर, लेकिन आपने बोला है कि फेज मेहनत के तहत जो है डेली वेजेस को जो है रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो है वो बनाई जाएगी. क्या उम्मीद लगाएं डेली वेजेस की, कब तक जो है ये रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो है वो बनेगी? क्या आप डेली वेजेस की जो उम्मीद है वो कब तक होगी या नहीं? जैसे मैंने कहा, मुझे नहीं लगता है ज्यादा वक्त लगेगा कमेटी को अपने रिपोर्ट फाइनल करने में. जैसे ही उनका रिपोर्ट फाइनल हो जाता है, एक फेज मैनर में ओवर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम इनके रेगुलराइजेशन हम कर लेंगे, क्योंकि वही इनके साथ इंसाफ है. और हम चाहते हैं कि एक ऐसे तरीके से हो कि कल को ये अदालत में ना फंसे. कल को ये अगर हम करना शुरू करें और कोई इस चीज को अदालत में ले जाए और सिलसिला रोक दें, तो ये उन लोगों के साथ भी मुश्किल होगा और हमारे लिए भी. तो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, एक वेल कंसिडर्ड तरीके से, जैसे मैंने कहा, एक फेज मैनर से इनका रेगुलराइजेशन का सिलसिला जो हमारी हुकूमत में हो जाएगा. मोहम्मद साहब, अजीज इंडिया, न्यूज़ इंडिया न्यूज़. आपने कहा कि एग्रीकल्चर और टूरिज्म ऐसे कई सेक्टर हैं जिससे जम्मू कश्मीर की तस्वीर और तकदीर बदल सकती है. बेसिकली जो दूर दराज के इलाके हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के लेकर आप बात करें या फिर टूरिज्म को लेकर, कई ऐसे इलाके हैं जहां तक शायद डिपार्टमेंट्स नहीं पहुंच पाते. अगर पहुंच पाते हैं तो जो लोग करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते. ऐसी क्या पॉलिसी बनाए इस साल से या आगे बनाई जाएगी आपकी तरफ से, जिससे बेसिक जो लोग हैं, ऐसे इलाके जो अनटच्ड हैं, उन इलाकों तक आपके लोग पहुंच सके और लोग जो है इस इकोनॉमी को बदलने में आपके साथ जुड़ सके. दूसरा सवाल एक बार पूछूंगा. चलिए, एक्सटेंशन एक्टिविटीज हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की तरफ से हर एरिया में किए जा रहे हैं. कृषि विकास केंद्र जो है पूरे जम्मू कश्मीर में फैले हुए हैं. फिजिकल प्रेजेंस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हर इलाके में है. लेकिन उस चीज के अलावा टेक्नोलॉजी पे एक बहुत बड़ा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि अब हर किसी के पास अब स्मार्टफोन है. बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन या डेटा कनेक्शन नहीं है. तो दूर दराज इलाकों में जिन किसानों की आप बात कर रहे हो, उन तक अगर हमारे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के एक्सटेंशन वाले नहीं पहुंचते या डिपार्टमेंट वाले नहीं पहुंचते हैं, हमारे एप्स जो हैं, हमारे डिजिटल सर्विसेज जो हैं, वो पहुंचाए जा सकते हैं. इसलिए बजट में आपने देखा होगा एक खास तवज्जो एग्रीकल्चर के इन सर्विसेज को किसान तक पहुंचाने का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो किस तरह किया जाएगा इस साल, उसके लिए हमने जो है एक प्रोविजन बजट में रखा हुआ है. दूसरा, आपने कल एक जिक्र किया था अपनी स्पीच के दौरान कि टूरिज्म की वजह से कई इलाके हैं जो अभी भी बंद हैं, टूरिस्ट वहां जा नहीं पा रहे हैं. केंद्र सरकार उस पर करेगी. लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को साथ रख के कुछ ऐसा किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट क्लेम करती है, यूनियन गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस की
अब जम्मू कश्मीर से टेररिज्म की जो युवा पहले शामिल होते थे उनमें कमी आई थी। हालांकि कल आपने कहा कि जो दिल्ली में हुआ उसमें उसको लगता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का कोई रोल इसमें होना चाहिए और उसके लिए आप अपनी तरफ से क्योंकि आप सरकार में इसको हम पॉलिटिसाइज नहीं करें तो बेहतर होगा। ये एक सिक्योरिटी रिलेटेड मामला है। पहलगाम के हमले के बाद इलाके बंद किए गए, अब हालात साजगार हैं, ठीक है, उनको दोबारा खोल दिया जाना चाहिए। अब इत्तेफाक से होम मिनिस्टर साहब यहाँ जम्मू में ही हैं। कल डेवलपमेंट को लेके उनकी एक मीटिंग है, मैं भी उस मीटिंग में शामिल हूँगा। तो ये बात जो बंद टूरिस्ट के इलाके हैं उनको दोबारा खोल दिया जाए, उस पर उनके साथ बात जरूर होगी। लेकिन इसको हम, जैसे मैंने कहा, पॉलिटिकल दायरे से बाहर ही रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। Good afternoon, Chief Minister Saab. This is Sunil Bhatt from the India Today Group. Chief Minister Saab, you spoke at length about healthcare. You even made many announcements in your budget speech. Sir, as you yourself admitted that, our hospitals, government hospitals in Jammu and Kashmir are overburdened. That's why in your speech you said that new hospitals are going to come up, emergency hospitals in Puri, in Puch, and cath labs are also going to be set up. More medical seats have been added. But Mr. Omar sir, as far as Jammu and Kashmir is concerned, still we see that a lot of people have to go outside Jammu and Kashmir for better treatment when it comes to serious ailments. Private players are not coming to Jammu and Kashmir. In Srinagar, I think a couple of hospitals have opened, but in Jammu region, major private players in healthcare sector are not coming. What is the reason for that? Because sometime back there was even an MOU that was signed between a major hospital and JNK government. We are not seeing major private players in the healthcare sector coming to Jammu and Kashmir. Is your government going to explore this particular issue? What are you going to do? Actually, it's a misconception that we don't have private healthcare options here. We don't have the big fancy corporate hospital private healthcare options here. Yes, I don't have an Apollo or a Medanta or something like that. But there is private healthcare in Jammu and Kashmir. It is actually more vibrant than perhaps other parts of the country. It is small, it is generic, it is indigenous, and it is easily accessible, and it's cheaper. So, I'm not one for chasing these big hospitals, because I know what happens to patients in some of these hospitals. They go in complaining of a headache, and unless they get their feet x-rayed, the hospital is not satisfied with the treatment meted out to them. So, if somebody wants to come and set up a private hospital, by all means come. But I'm not one of those who's going to go out looking for them because I want to show a big name. I'm much happier, improving the infrastructure in government hospitals so that people don't have to look for big private hospitals. I'm much happier ensuring that AIIMS Jammu and AIIMS Kashmir are able to function, that our government medical college hospitals are strengthened. And that is what this budget was about. If somebody wants to come and set up a big private hospital, by all means, wherever the government can help you, we will. But I'm not going and knocking on their doors and trying to bring them. Good afternoon, sir. Pradeep Datta from NTTV. I've got two questions. One, that tomorrow you'll be meeting Home Minister. What are the three important things that you'll be asking and discussing with Home Minister when you'll be meeting? And the second question is... Okay, let me answer your first question first. If I had to ask the Honorable Home Minister something through you, then I wouldn't need to meet him tomorrow. I would just tell you and you could convey it to him. And therefore, I think propriety demands that anything I have to say to the Honorable Home Minister, I say to him directly. And then if it's something I can share with you, I'll share with you after that. But I most certainly will not be telling you beforehand what I'm going to tell him, because I don't think that's the correct way of doing it. Now your second question. You had pointed towards, yesterday you had pointed towards the contradiction. Yesterday? Yesterday while you were addressing inside the assembly, you said, I'm not talking about this particular question, I'm talking about something else. Because you said that the government of India is saying that no local youth is joining terror act. You said if that is the reality, that there had been the white collar terrorists who had been responsible for the Delhi blast. So now my question to you is, whom do you blame for that white collar terrorism that led to the radicalization of the doctors, that led to the Delhi blast? You think it has been the alienation or when
when the subject of the press conference is not post-budget press conference. I'll be more than happy to discuss all these things with you. I think there's hardly an event that I do where most of you do not come, and then I end up stopping and talking to you. But I'm not going to suck the oxygen out of this press conference by making it about India, Pakistan, or terror, or anything else, because this is not the purpose. Your channels couldn't care less about the budget. You want to drag me into a subject that I'm not going to get dragged into. Therefore, please leave it. Anything that I have to say on this matter, I'll do it, but not in this press conference. Thanks for not answering, but yes, we always believe that our Chief Minister is capable and competent of answering any question. That's one of the reasons we take sometimes liberty. Sir, no, that we can No, you can take as many liberties as you like. I have always said that you have every right to ask any question you want. It is my right to decide whether I want to answer it or not. And in this case, I've chosen not to answer it. Lady in the center. Sir, this is Himani Gandhari from JK News Today. Do you have any special plan to make Jammu Kashmir self-reliant, and what are those? If you're asking me, do I have a magic wand that I can wave to make Jammu and Kashmir self-reliant, then the honest answer to that is no. That said, if you look at last year's budget and this year's budget, we are working to improve Jammu and Kashmir's economic standing. And there is no one particular thing that you can do for it. It touches across all sectors, it touches both your expenditure as well as your income. It takes targeted interventions for it. And these budgets have all been directed towards that. But there isn't one specific thing I can tell you, other than the fact that at some point, whether in the life of this government or in the life of a future government, I would like and I hope that all of us get to see a Jammu and Kashmir where you're not dependent on the centre for more than is your due share. I mean, one of the points that was raised was that our income is only so much, and therefore you forget that other than what we earn, there is also what is automatically due to us. That is our right. So as long as that is enough to sustain us, that's what we should aim for, but I don't have a particular point that I could tell you that we would be implementing. So there is a problem we see here in J&K that silent migration is happening. What do you want to say on this? Like our students, our young youth are going outside for studies, for jobs. I mean, movement of people is never a bad thing. Movement of people, I don't think we should closet ourselves or live in silos. If our students go out and study and come back, I don't think it's a bad thing. I would be sort of disturbed if our investment was moving out, if productive assets were relocating from here. But if somebody wants to go out, improve themselves, study, come back, do something here, I don't think it's a bad thing per se. And it's happening all across the country. But they are not coming Look, back. I mean, you forget, a lot of people come here to study. Look at, I mean, all your universities, and I'm not just talking about the IIT, IIM, or Sri Mata Vaishno Devi. Look at your SCOST Kashmir, SCOST Jammu. See how many students there are from outside of J&K studying there. Go to Kashmir University, Jammu University. See how many students from outside J&K are studying there. So there's this churning of people. I don't believe it's a bad thing. Thank you, sir. I request once again, please have one question at a time. Please. Yeah. You will have to be a little louder. Good afternoon, sir. This is Shruti, representing Greater Kashmir. I have two questions. One related to budget, like you have announced 6 free gas cylinders. So my question. I'm sorry, but I can't understand a word of what you're saying. Good afternoon. Is it audible now? Yeah, that much I understood. From Greater Kashmir. That much I got. After that. Okay. So my question, I have two questions. First relates to 6 free gas cylinders. So my question will be like, will it also be dependent on this
Why are you worried about that? Sir, secondly, Honestly, what does it matter to you where it comes from? As long as somebody gets it for free. How we fund it, how we make it available, that is of no concern to you or for that matter to the person who's getting it. Their only concern is have they got a cylinder and have they had to pay for it. Please leave that to us as to how we will do it. All I will tell you is that we won't transfer this burden onto anybody else. I won't be making you or anybody sitting here pay for those cylinders. That you rest assured. I'm not going to raise your prices so that somebody's cylinder is paid for. Don't worry. sir, secondly, during your first, after taking over as the chief minister, during one of your maiden interactions with the news agency, National News Agency, you had stated that in case we don't get statehood very soon, which I hope we are not going to get very soon, then I have a plan B. So my question is whether what is your plan B, and if you don't want to disclose it, whether it is under implementation right now? Well, one, what does this have to do with the budget? And two, what channel do you have that I don't have? That you have decided that we're not going to get statehood and therefore my plan B becomes of utmost importance to all of you. I have not arrived at the conclusion that we're not getting statehood and therefore my plan B now has to become a plan A. I am still very hopeful that the commitment made to Jammu and Kashmir will be kept. And therefore everything else is an academic question and not the subject of this press conference. My attendants, please give only for one question, then please take back the mic. Ma'am, please. Yeah. नमस्कार सर, मैं रति हूँ महुआ एक्सप्रेस से। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि एटलीस्ट 225 जो है हमारे आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स पक्के कर दिए गए हैं, उनको नौकरी मिल गई है। पर सर बात उन लोगों की है रैबरी खेल, NYCs और एवरेज जुमलात, उन लोगों के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है कि कब तक उनको किया जाएगा पक्का और क्या सरकारी या 1500 रुपए से ज्यादा वो अपने पास जेबे रख नहीं पा रहे हैं, उनसे उनकी नौकरी नहीं चलती, उनका घर नहीं चलता, लगातार उनके यही सवाल होता है। और जो जवाब मैंने आपको देना था वो बजट के जरिए मैंने कहा हुआ है कि जहां रेगुलराइजेशन की बात होगी, जो भी कमेटी, जब कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है फाइनल करके हमें दे देगी, एक फेज्ड मैनर में प्लान तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से हम रेगुलराइजेशन का काम जो है वो शुरू कर लेंगे। This side. Wait a second, just a second. Sir, just a second. आदर्श कुमार गुप्ता, BP न्यूज लाइन। अभी आपने कहा कि बाहर से हॉस्पिटल यहाँ आने चाहिए। अपोलो हॉस्पिटल यहाँ आ रहा था, MOU साइन हुआ, उससे जो जमीन अलाट की गई वो पहले ही अलाटेड थी, वो कोर्ट के चक्कर में जा रहे हैं। अगर ऐसा ही रुक रहा तो किस तरह से बाहर के हॉस्पिटल जा रहे हैं? अगर उनको वो जमीन नहीं लगी तो हम कहीं और जमीन दे देंगे। उन्होंने तो हमसे किसी इस मुतालिक बात भी नहीं की। अगर आके मिले होते, बात की होती, अगर उन्होंने कहा होता कि जमीन का मसला है, उनको कहीं और जमीन चाहिए, हम दे देते। लेकिन अभी तक अपोलो हॉस्पिटल्स की तरफ से जमीन को लेके यहाँ अस्पताल मेरे से या हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब से इस मुताबिक कोई बात करेंगे तो जरूर उसका हम हल करके दे देंगे। कोर्ट में चल रहा है तो उसका मैं यहाँ जवाब दे नहीं सकता ना, वो तो कोर्ट और कंपनी के दरमियान है। सर सभी आज हमने जब आपने बजट पढ़ना शुरू किया तो एक शेर से शुरू किया, तो आपने कहा कि बोझ बहुत है लेकिन चलते जाना है। कल भी आपने जब अपनी तकलीफ की एड्रेस पे तो आपने ये कहा कि यूजी में काम करना इज वेरी डिफिकल्ट और मुझे नहीं पता कि मैंने मैनिफेस्टो क्यों बनाया था। राइट अब मैं आप कॉन्टेक्स्ट को ही बदल रहे हैं। सवाल मेरा सर ये है कि अपोजिशन ये कह रही है कि ये मजाक है, मतलब बजट के बारे में। हाँ तो मैंने मजाक में ही तो कहा। आपसे सवाल मैंने तो हंसते हुए कहा। देखिए डेलीवेटर्स का चैलेंज है, आपको प्रॉमिसेस में जो गैस सिलेंडर्स देने हैं, आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करनी है, आपको आप सवाल कर रहे हो या तकरीर कर रहे हो? मेरा सवाल ये है कि आप किस तरह से आगे करनी और अपोजिशन की जो बातें उनको क्या जवाब देना? ऑपोजिशन का काम क्या है वो उनके नाम से ही तो पता चल जाता है ना। They are called the opposition for what? Because they have to oppose. आप कुछ अच्छा करोगे वो उसमें भी खराबी निकालेंगे। उनका काम है ना, उनकी मजबूरी है
क्योंकि जहां हम बैठे हैं वहां पे वो बैठना चाहते हैं, लेकिन अभी तक बैठ नहीं पाए। तो इसलिए हम जो भी अच्छा करेंगे उनकी आंखें बंद होंगी। अगर हमसे कोई कोताही हुई, कोई कमी रही, उस चीज को वो उछाल के पेश करेंगे। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमने जितना किया इन 1-1.5 साल में, शायद ही ऑपोजिशन उम्मीद कर रही थी कि हम करेंगे। उनको तो लग रहा था कि पहले दिन से हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कतरा कतरा हम अपने वादे जो है पूरे कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसीलिए वो बोखला गए हैं, इसलिए हर चीज को वो बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं। मैंने मजाक के तौर पर कहा कि मैं अगली बार मैनिफेस्टो बनाऊंगा नहीं, क्योंकि अब आपने जैसे कल देखा गवर्नर साहब के खुतबे पे बहस कम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पे बहस ज्यादा। तो फिर गवर्नर एड्रेस का फायदा क्या, फिर मैनिफेस्टो पे ही डिस्कशन कर लो। मैंने उस अंदाज में कहा, लेकिन वो छोड़ दीजिए हाउस में हम क्या कहते हैं क्या नहीं करते। आप जमीनी सतह पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, और वो हमारे बजट्स में आपको दिख रहा होगा। So the question last question. Yeah, take 2-3 more minutes. Last one. Oh, third last. मुख्यमंत्री जी, ये वही स्थान है, पिछले इतना यहाँ ये वही स्थान है जहाँ पिछले साल भी बैठे थे बजट देने के बाद। आपकी भी कुर्सी वही है शायद। आपकी भी जगह बदली नहीं, मैं भी इसी जगह हूँ। और तभी मैंने आपको मुबारक दी थी, मुकद्दस महीना चल रहा था रमजान का, और आपने पानी बिल्कुल नहीं दिया था। बजट आपका लंबा, इसलिए इस साल बदल दिया। बिल्कुल से बहुत मुबारक है। अब एक चीज बजट से तो झुकती है कहीं ना कहीं, राजनीतिक आपको उमर अब्दुल्ला साहब विरासत में मिले। दादा आपके बाबा अकाउंट एक रिकॉर्ड था उनका, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आपके वालिद हैं, बहुत कुछ आपको विरासत में मिला। इनसे जो विरासत में मिला, एक और बड़ा मैं आपको जानकारी चाहता हूँ, कैसा आपको लगे विरासत में जो मिला उसका यहाँ आपको एज ए चीफ मिनिस्टर क्या लाभ मिल रहा है? मैं इस सवाल का जवाब दे नहीं सकता। एक तो ये आउट ऑफ सिलेबस होगा, और इस सवाल का जवाब शायद मेरे पास है भी नहीं। क्या मिला, क्या नहीं मिला, कितना मिला, कम मिला, ज्यादा मिला, किसी दिन अगर किताब लिखूंगा जिक्र उसी में कर लूंगा, नहीं तो कहीं आपसे के साथ चाय के कप पे बैठ के गुफ्तगू और बहस करेंगे। मैं इन सबका इस पे वक्त जाया नहीं करूंगा। सन 1996 से लेकर जब नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में आई, 2/3 मेजॉरिटी में ऐसे लंबे अरसे के बाद चुनाव हुआ। इट वॉज एन रिकॉर्ड इन जम्मू कश्मीर। अल्लाह का करम है, तब से लेके आज तक मैं विधानसभा का सत्र लगातार कवर कर रहा हूँ। अब चाहे घर में जाके कर लेता हूँ, क्योंकि अब नई चीज आती है। पहली बार चीफ मिनिस्टर साहब को मौका मिला है, आपकी रुलिंग पार्टी के दो मंत्री